پہلی آیت اندہ مفاتیح الغیب، غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے. مفاتیح مفتاح ان کی جمع ہے. مفاتیح مانے کنجیاں. مفاتیح کا نام لکھ لیا، مفاتیح کا پہلا حرف نکالا تو میم لکھا، اور میم لکھنے کے بعد جوڑ کا نشان دیا، اور پھر آخری حرف بڑا ہے نکالا جسے اے حیدرآبادی کہتے ہیں. اے حیدرآبادی نکالا، آگے لکھ دیا، پھر جوڑ کا نشان دے دیا. اب دوسری آیت اٹھایا، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے کی کنجی اللہ کے لیے ہے. مقالید مانے بھی کنجی. ہم مقالید کا پہلا حرف نکالا میم، اور آخری حرف نکالا تال. ہم میم ہے میم تال، اور چاروں کو جب چھوڑ دیا تو بن گیا لفظ محمد. جنت کا دروازہ کھلے تو پہلے نبی کے دستے کرم سے، شفاعت کا دروازہ کھلے پہلے نبی کے دستے کرم سے. جہاں جہاں جائے نبی کی رہنمائی ہے، نبی کی پیشوائی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے وہ سماج جس کو سب کنجی کنجی کہتے ان کی نافذ حکومت کے لفظ. حضرات آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر راہ شریعت تشریف فرما ہے. آپ لوگ کہتے ہیں پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ اس سے کچھ سمجھ نہیں آنا. اس سے فائدہ کچھ ہے؟ اگر فائدہ نہیں تو ہم پکڑے ہیں کیوں؟ یہ فائدہ کی چونٹی جیسے چھوٹی سی مخلوق نہیں کرتی. رب نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم بے فائدہ کیسے دامن پکڑیں گے؟ حضرات یہ شہر ہے، شہروں میں دیکھا ہوگا، میرا آنا جانا بمبئی رہتا ہے. بمبئی میں میں نے دیکھا ہے جہاں کتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ابھی کل پرسوں پیپر میں نکلا تھا آوارے جانوروں کی گرفتاری. کل ہی پرسوں نکلا تھا پیپر میں. جو یوپی میں پیپر نکلتا ہے راشٹریہ سہارا، اس میں آوارہ جانوروں کی. آپ نے دیکھا جب شہروں میں کتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے حکومت کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے ان آوارہ کتوں کو گرفتار کیا جائے. اب اس کی گرفتاری ہوتی ہے. فرض کیجیے ایک گلی کا گھیراؤ ہو گیا، اس گلی میں جتنے آوارے کتے ہیں اس کی گرفتاری ہو رہی ہے. چاروں طرف سے گھیراؤ پکڑ پکڑ کر ٹرک میں بند کیا جا رہا ہے. جنگل میں چھوڑا جائے گا تاکہ جنگلی درندہ جانوروں کا یہ لقمہ بن جائے. گرفتاری ہو رہی ہے. اور بمبئی میں کتوں کے پالنے کا بھی رواج مرد تو مرد ہے، عورتوں کو دیکھا بکریوں کی طرح رسی لیے گھومتے ہے نا، اور پالتے. اب اسی گلی کا گھیراؤ ہے جہاں آزاد کتوں کی گرفتاری ہو رہی ہے. اسی گلی سے ایک شیخ نکلے، اس کے ہاتھ میں کتے کی زنجیر ہے، کتے کے گلے میں پٹا ہے، پٹے میں زنجیر لگی ہے، زنجیر کی آخری کڑی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. اب اسی گلی سے لیے آ رہا ہے. پوچھے پولیس کے عملہ سے کیا اس کتے کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ کیا اس کتے کو پکڑا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیا اس کے گلے میں پٹا ہے، پٹے میں زنجیر ہے، زنجیر کی آخری کڑی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. وہ پالتو نہیں ہے، پالتو ہے. تو حضرات ہم
उसका जवाब आपके सामने रखने का और चैलेंज के साथ। हजरत, आए दिन इंसान का इंतकाल होता है, हम और आप अपनी आंखों से देखते हैं। कोई मुसलमान इंतकाल हुआ, जनाजे में शरीक होते हैं, तकरीर की जाती है, चाहे तीजा में हो, चाहे 10वां में या 20वां में, मौत की के तवस्सुल से बयान किया जाता है। उलमाए किराम की जुबानी आपने सुना है, जब मैयत कब्र में उतार दी जाती, मिट्टी बराबर हो गई, मुनकर नकीर 2 फरिश्ते आते हैं, मुर्दे से सवाल करते हैं। सवालात 3 होते हैं। पहला सवाल मन रब्बुक का, दूसरा सवाल माँ दीनों का, तीसरा सवाल नबी का जलवा दिखाया जाता है और पूछा जाता है, पहचानते हो ये कौन है? माँ कुंता तक़ूलु पहचाने हाजिर हो। ये 3 सवालात हैं। जब इन तीनों सवालों पर गौर किया तो सवालात तो 3 है मगर ज़रूर 2 बनते हैं। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, सवाल 3 है और गुरूप 2, गुरूप अलिफ और गुरूप बे। गुरूप अलिफ में 2 हिस्सा है। पहला दोनों सवाल मन रब्बों का और माँ तीनों का, ये दोनों सवाल ऐसा है जिसका ताल्लुक इल्म से है और इल्म के लिए आंख से देखना कोई जरूरी नहीं, कान से सुन लेना काफी है। मैं बहुत छोटा था, माँ गोद में लिया, कहा बेटा तेरा रब अल्लाह है। अपने माँ की जुबानी सुना, इल्म हो गया। रब को देखा नहीं मगर इल्म हो गया। बाप ने कहा बेटा तेरा रब अल्लाह है, बाप की जुबानी सुना, इल्म हो गया। हम तकरीर सुनने आए, उलमा की जुबानी सुने, ए मुसलमानों हम सब का रब अल्लाह है। हम उलमा की जुबानी सुने, इल्म हो गया। रब को देखा नहीं, इल्म के लिए देखना कोई जरूरी नहीं, कान से सुन लेना काफी है। तो चलो पहला सवाल मन रब्बुक का, इसमें तो कुछ मुमकिन है जवाब दे। दूसरा सवाल माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? इसका ताल्लुक भी इल्म से है। हम तकरीर सुनने आए और उलमाए किराम ने फरमाया है लोगों हम मुसलमान हैं, हम सबका दीन दीन इस्लाम है। हम इस्लाम को देखा नहीं, उसका कुर्ता कैसा है, पैजामा कैसा है, टोपी कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, नहीं देखा। उलमा की जुबानी सुना, इल्म हो गया कि हमारा दीन दीन इस्लाम है ना। लेकिन तीसरा सवाल यही अहम है, नबी का जलवा दिखाया जाता है और पहचानवाया जाता है। पहचानते हो ये कौन है? और जानते पहचानने के लिए पहले देखना जरूरी। समझ रखिएगा, आखिर सबको यकीन जाना है। पहचानने के लिए पहले देखना जरूरी। हमें कोई नहीं देखा आज से पहले, वो नहीं पहचानेंगे। और कल सुबह जब आपके इश्तिहार मोहब्बत से मिलूंगा तो पहचानने के लिए पहले देखना कि देखे हो तब पहचानेंगे, दिखाई नहीं तो पहचानेंगे कैसे? अब बताओ इतने बड़े मजमा में कौन है जो सर की आंखों से नबी का जलवा देखा हो? अगर देखा नहीं तो खबर में पहचानोगे कैसे? बताओ पहचान लेंगे? सुन्नी मुसलमानों घबराए नहीं, हमारे लिए हमारे रहनुमा आला हजरत काफी है। पहचान बता दिया है, जिसको नबी से बराबरी का दावा है जरा मैदान में निकल के हमें बता दे। पहचान लोगे? अगर कहोगे अल्लाह का फर्ज होगा पहचानेंगे, ये अकीदे की बात है, अक्ल का सवाल है। अक्ल यही कहती है पहचानने के लिए पहले देखना जरूरी। तुमने देखा नहीं, पहचानोगे कैसे? बताओ। हम इश्क के बंदे हैं, आला हजरत ने इश्क की बात समझाई है, फिर हम इश्क में उतर जाते हैं तो हम पहचान लेते हैं। वो कैसे? जरा जहन को हाजिर कीजिएगा। एक खाका तैयार करता हूँ, खाका जहन से उतर जाए, आसानी से आपको पहचान मिल जाएगी। कैसे पहचानेंगे? इस मजमे में बहुत हर तरह के लोग हैं, कारोबारी लोग भी होंगे, सब जानते हैं शहरों में पीओपी का काम बहुत होता है। एक बहुत बड़ा सेठ बहुत आलीशान बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग के आगे हिस्से में एक ऑफिस बनाया। सोचा ऑफिस बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, उसके लिए बहुत दूर दूर से कारीगर लाया। एक कारीगर बंबई, जो बेहतरीन शहर है, वहां का माना हुआ कारीगर लाया, और एक दिल्ली राजधानी का सुपरहिट कारीगर, 2 कारीगर
दोनों कारीगर को ले गए एक कमरे में, कमरे के बीच में एक पर्दा लगा दिया, एक कमरे का 2 हिस्सा बन गया। एक दीवार बंबई के कारीगर को दिया, एक दीवार दिल्ली के कारीगर को दिया, तुम अपना काम इस पे दिखाओ और तुम अपना कमाल इस पे दिखाओ। जो बंबई का कारीगर था अपने हिस्से की दीवार पे पीओपी का काम शुरू किया तो एक से एक फूल पत्ती बनाया, एक से एक बेल बूटे बनाए, एक से एक कशीदाकारी किया और उसे रंग रोगन से रंग कर तैयार किया, बड़ी खूबसूरती पैदा किया, बहुत खूबसूरत बनाया। और जो दिल्ली का कारीगर था अपने हिस्से की दीवार पे सिर्फ माल चढ़ाकर इतना बराबर उसकी सफाई किया कि शीशे की तरह साफो शफाफ कर दिया, दीवार के सामने जो खड़ा हो जाए सरापा उस दीवार पे उतर जाए। जैसे नाई की दुकान पे खड़े हो जाइए तो आपका सरापा शीशे पे उतरता है ना, उसी शीशे की तरह दीवार को बना दिया दिल्ली का कारीगर। जो सामने आए उसका आंख दीवार पे उतर जाए। और जो बंबई का कारीगर का फूल पत्ती बनाया, कशीदाकारी किया, अब दोनों कारीगर का काम हो गया। सेठ को इत्तला दिया, सेठ साहब चलिए देख लीजिए। सेठ आए, गेट पर खड़े हुए, एक नजर इधर डाला, एक नजर इधर देखा, दिलो दिमाग से कुछ तोड़ दिया, गौर किया, सोचा, कुछ बात समझ में आ गई, पर्दा पकड़ लिया और सीधे पकड़ के नोच दिया है। लोगों, सारा झगड़ा इसी पर्दे का है। जैसे पर्दा नोचो, इस दीवार पे जो फूल पत्तियां बनी थी इसका अक्स इस दीवार पे उतर गया। बात समझ में आ रही है? जो जलवा इधर दिखाई दे रहा है वही फूल पत्ती इधर भी। आप समझ